आपने किम इल सुंग का इंटरव्यू करा था. What kind of personality he was? मतलब I want to know everything. I was the first person who covered the Babri Masjid. I was there with my camera team right there जहाँ शिलान्यास हुआ और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद गिराई गई. See, you enter Pyongyang and there is something very very strange in that city. आपको आवाज नहीं आती. Oh. और वो उसकी वजह ये है, birds नहीं वहाँ पर हो सकते. They kill all the birds. Did you ever feel that pressure of being politically correct to say Doordarshan or the government? See, nobody, unlike जो फिल्मों में दिखाते हैं and all that कि मतलब कि कोई बैठ के डंडा लेके बैठा हुआ है तुम्हारे सर के ऊपर, ऐसा भी कुछ नहीं था. Freedom of expression, I feel, has to be absolute. आप जर्नलिज्म में रहे हो, आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए होता है. आपका क्या टेक है इस चीज़ में? You interviewed Mikhail Gorbachev. This must have been after 1991 only. Yeah. And I still remember I couldn't help staring him because he had this wine-colored mark on his forehead. You also wrote a show or a series you created, Agent Rana. Agent Rana. When was that? This was after your second stint? उसमें क्या था कि a lot of people got upset. एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया के कई रीडर्स भी थोड़े अपसेट हो गए थे कि यार ये ग्राफिक नॉवल उसमें सेक्स दिखा रहे हैं, वायलेंस दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? Thank you so much, Jaggi sir, for being on the podcast. It's an absolute pleasure and honor to have you. Thank you for doing this. And अब बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आपके बारे में जानेंगे. तो थैंक यू पहले तो. Thank you so much, Akhil. Thank you for actually giving me a chance to come on your very interesting podcast. Yeah. So sir, I was reading about you. थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था आपके बारे में. You were one of the first TV news journalists out of India. फॉर दूरदर्शन. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा उसके बारे में, अगर आप बताओ कि हाउ डिड दैट हैपन, व्हाट वाज दैट एरा ऑफ जर्नलिज्म लाइक. यू नो, अब तो क्या है, बतेरे चैनल हो गए, बतेरे एंकर्स हो गए. उस टाइम गिने चुने थे और एक ही चैनल था. Correct. तो मैं पहले वो जानना चाहूँगा थोड़ा, अगर आप. Yeah, sure. explain करें. See, we started around, I think, around 87. मैं खुद भूल गया हूँ अब कब था, but yeah, it was I think June 87 or something. And उससे पहले क्या होता था, न्यूज़ रीडर होते थे. जी. You know, news readers, the old timers like Salma Sultan and Puri and all these people. Then there was this IAS officer called Bhaskar Ghosh. Okay. Bhaskar Ghosh, by the way, is the father-in-law of Rajdeep Sardesai. Oh, okay. Yeah, and Sagarika Ghosh. Okay. So, to give credit to Bhaskar Ghosh, he heralded the television news revolution in the country. जो उन्होंने करा है, जो उनकी बात सही है, बिल्कुल सही है. And he was very keen to set up what is called a correspondent base in the country like the BBC. You know, जैसे BBC के correspondents होते हैं. उस टाइम कोई हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं थी. So then Doordarshan did this internal exam. I was working in some corporate at that time, but then this ad came and I applied for it. Television का थोड़ा बहुत idea हो रहा था उस time. Got selected. And then we joined this batch and I left my corporate job and I said, no, I want to be in television. Why not? And it was probably the best decision I took because it was such an exciting journey. You know, it's like Christopher Columbus going and discovering America for the first time. Yeah. We were the first ever batch. Imagine, I think 50 odd people were selected from all over the country. We were sent to FTI, Film and Television Institute, for training. फिर एक German team आई, they came and trained us. At CPC is दूरदर्शन के यहाँ पर सिटी फोर्ट में भी इनके हैं offices. So and then we were launched. तो yes, दूरदर्शन का obviously everybody knows control तो होता ही है गवर्नमेंट का. 100% वो तो गवर्नमेंट वो है. माउथ पीस है. But despite that, there were some outstanding coverages we did. As far as I'm concerned, I had these two most outstanding coverages in my time. I was the first person who covered the Babri Masjid when it fell down. I was 1992. I was there with my camera team right there जहाँ शिलान्यास हुआ और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद गिराई गई. तो I captured the whole thing. All this पूरी footage मेरे पास थी. Damn. So that was the big thing. Then the first... You covered one of the most monumental moments that you had. Yes. बस उसके वीडियो वाले होते थे, न्यूज़ ट्रैक होता था, but that was a video outfit and eyewitness और BBC था, but BBC also actually took a lot of visuals from us later on. And the other monumental coverage which I did was I was the first person to interview the North Korean leader. Yeah, I read about that. Yeah, so जो आजकल का जो ये great इसके दादाजी थे,
के दादाजी, Kim Il Sung. Kim Il Sung, yeah. I also interviewed Gorbachev also in the Kremlin. Seriously? Oh, wait, I need to know about these. I will come on to this Sure. after this because these are completely two separate topics for anyone who's interested in politics or geopolitics. These two names have played a massive role in shaping the Yes. power centers that there are in today's world. Right. But coming back to you being in Doordarshan, how have the times changed in terms of technology has grown so fast, so rapidly, that you also must have had to adjust say, after every 2 years or learn new things. So what was that like? Seeing technology just because I think after 1991 तो एकदम ही boom हो गया था. Tech हो गया था. everywhere. So and I know tech plays such a big role in journalism as well. Sure. So firstly that and secondly आप इससे start करो then I'll come to the second question. Akhil, I'll give you a very interesting take on the entire thing. Yes, absolutely. Technology has to change, and why shouldn't No, it of change? course, You yeah. know, the latest equipment are there and all that. आजकल आपके जो पीस टू कैमरा कहते हैं, उसको आप टेलीप्रॉम्प्टर पे कर लो, कैसे भी कर लो, जो भी कर लो, whatever. But I still believe the basics are the same. And what are the basics? The basics is कि आप टेलीविजन कैमरा के सामने खड़े होते हैं और आप टेलीविजन कैमरा के अंदर देखते हैं, चाहे वो आप 1987 में देख रहे थे या आज देख रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस, आप कहाँ देख रहे हो, आप किस ब्रेविटी के साथ बात कर रहे हो, लंबी लंबी, मतलब यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेलीविजन कम्युनिकेशन, वो अभी भी वही हैं. So the best anchors today are those who understand the dynamics, the syntax. एक syntax एक अंग्रेजी का शब्द होता है, इसका मतलब होता है construction of sentences होता है, जैसे हम किताबों में लिखते हैं, बट एक टेलीविजन ग्रामर भी होता है. और जब तक आपको ये नहीं पता कि सिंक कहाँ पर है, आपका देखना कहाँ पर है, कहाँ पर कटिंग करनी है, वो रूल्स तो अभी भी वही हैं. बट या आई एग्री, टेक्नोलॉजी हैज़ मैसिवली चेंज. आप सैटेलाइट डिश लगा के कहीं से भी आप रिपोर्ट कर सकते हो. आई मीन इट्स सो ईजी टू डू ऑल दीज थिंग्स टुडे, यू नो. वॉर रिपोर्टिंग जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग होती है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ दैट इन कश्मीर. मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाता था. उस टाइम हमारे ये नहीं होती थी सैटेलाइट डिशेज एंड ऑल दैट, तो वो पूरा दूरदर्शन को उधर जाना पड़ता था केंद्र, और वहाँ से फिर वो माइक्रोवेव होता था, अपलोड करो, और लंबे बड़े बड़े टेप्स होते थे कॉल हाई बैंड टेप्स, और वो ज़माना अलग था. बट आई स्टिल बिलीव द मैन, एज ए से, द मैन बिहाइंड द मशीन or the man behind the camera is still the same. Those concepts, I don't think so have changed at all. Because Doordarshan is basically mouthpiece of whichever government is in power at that time. Correct. Did you ever feel that pressure of being politically correct to, say, Doordarshan or the government? See, nobody, unlike जो फिल्मों में दिखाते हैं and all that, कि मतलब कोई बैठ के डंडा लेके बैठा हुआ है तुम्हारे सर के ऊपर, ऐसा भी कुछ नहीं था. बट सी, वो क्या होता है, सेंसरशिप इज अ वेरी फनी थिंग. एक सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो जाती है दूरदर्शन में, वेर यू, इवन बिफोर द रिपोर्टर और द कॉरेस्पॉन्डेंट कैन डू एनीथिंग, द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम के, यार भैया टेक इट इजी यार, मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को कॉल मंडी हाउस से आ जाए या एनबी मिनिस्ट्री से आ जाए. सो यू नो, दैट्स द वे इट यूज्ड टू ऑपरेट. आई डोंट थिंक सो पीपल वर सिटिंग देयर एंड मॉनिटरिंग एवरी शो, अनलाइक व्हाट पीपल फील. एंड इफ यू रिमेंबर, उस टाइम, यू आर टू यंग, बट उस टाइम प्रणॉय भी हमारे साथ साथ शुरू हो गया था दूरदर्शन के अंदर ही. तो प्रणॉय को तो काफ़ी फ्रीडम थी. वो सेम, मतलब बैंडविथ, दूरदर्शन की बैंडविथ पे ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट प्रोग्राम्स, यू नो. तो वो ही कुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इन दो, आई थिंक उसका प्रोग्राम था कनेक्टेड विद द वर्ल्ड एंड एवरी वर्ल्ड अफेयर्स और व्हाटएवर. तो ये जो है धारणा है कि सब एक सेंसरशिप लेके वहाँ बैठे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड, इज नॉट ट्रू. But yes, the degree of self-censorship काफ़ी हो जाती है. That I agree with that. But then look at it, Akhil, this way. Today, आप channels को देख लो, let's not name them. Yeah. But every channel is corporatized with a certain particular interest. 100%. तो वो क्या है, मतलब वो भी एक तरह की censorship भी है ना. They're all running businesses. It's a business. I mean, that's how much money you can make at the end of the day. Totally. Yeah. Recently, only I would not like to take any names, but you know, this journalist, one of the most famous in the country, started changing his narrative, or started saying things which should have been reported. And then some Instagram influencer came up and said, you know, look at his balance sheets. He's
massively. He's profitable, his Chinese channel, but he's been taking a lot of debt to grow, but his TRPs are falling because people have realized now in the last 3, 4, 5 years Yeah. that जो news उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है. नहीं मिल रही है. So they have started looking for alternative sources. The trust on a national media outlet or a channel Yeah. is literally zero. Correct. And people are looking at alternative sources, whether on YouTube or Instagram or books or whatever. Sure. So then one has to realize, okay, now I have to report what people want to see for them to actually follow my channel. Correct. No, absolutely. What you said is absolutely correct. The credibility. See, क्या होता है? Honestly, today we are a very polarized society. हम सब बटे हुए हैं दो खेमों में. बिल्कुल. कोई इधर इस तरफ है या उस तरफ है. वो you know what I'm talking about. Now, fine, you can switch on to a news channel which you know will parrot a particular line of a particular party or whatever. आप करते रहो. But मुझे अभी भी लगता है there's a huge segment of people which wants balance, objective news, Yes, interesting news. definitely. और वो लोग तरस रहे हैं उसके लिए. And that is why लोग टेलीविजन चैनल्स को छोड़कर पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मोर एंड मोर दैट इज हैपनिंग. वहाँ पर भी बटे हुए हैं खेमों में लोग, लेकिन अभी कई लोग आ रहे हैं who are presenting a more balanced picture, a neutral picture. I think that's the way forward. See, podcasting का एक फायदा क्या है? It is segmentation. You capture a particular segment. अब जैसे ये मेजर गौरव करता है जो डिफेंस के ऊपर. Now he's captured a very good segment. Yeah. You know, he talks about defense because he has knowledge of these matters and everything. मेरा अपना पॉडकास्ट है, मैं जियो स्ट्रेटजी पे काफ़ी मतलब मेरे होते हैं मतलब. The idea is to be credible. The idea is to make it interesting. And the idea is कि आप बहुत bias अपना मत लेके आओ. And that's why I personally advocate a centrist approach is probably the best approach in these things. Like I say it very openly on my podcast also, on social media also, that I am a hardcore BJP supporter, and I do talk about a lot of the ideals and ideology as well. Yeah. But when it comes to say news or even me, I'm nowhere calling myself a news portal or anything. I just have conversations. Yeah. But I still make sure that even with that mindset or ideology, I have to see what is right and what is wrong, because at the end of the day वो वाजपेयी जी नहीं कहते थे कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, देश आगे बढ़ते देश रहना तो बिल्कुल चाहिए. वही. हाँ, तो बिल्कुल. I think same has to happen with media. You're correct. No, you made a very interesting observation, और मैं एक एग्जांपल उसका देना चाहूँगा. Maybe I might also have, let's say, sympathies with the present government, but I'm not going to defend, for instance, they can't handle the pollution crisis in Delhi. Exactly. But what are they doing about the Rawaris? Yeah. You know, this is stupidity. Yeah. अब 100%. आपको सेलेक्ट करा गया है, आपको रिप्लेस करके आए हैं, तो आप कुछ काम करिए ना. मतलब nobody is prepared. Look at the traffic situation in Delhi. You are driving on a road और लोग आपके सामने ड्राइव कर रहे हैं. I mean, see, the problem which is becoming is not only Delhi, in city after city is that politicians are afraid to disturb vote banks. Yeah. उनको लगता है कि Bang अगर on. वोट बैंक को डिस्टर्ब कर दिया, पटरी पे लोग 10 लोग बैठे हुए हैं और कोई चल नहीं सकता, तो मैं पावर में कैसे? तो वो वोट्स चले जाएंगे. I mean, if you start thinking like this, the cities are already slums बन चुकी है हमारी cities. Sir, I tell everyone that in India, Yeah. our politics is run election to election. It's Correct. not कि भाई you need people who will say I don't give a damn if I come to power next time, but I need to get this done. Yeah. But also on the other hand, a politician is as good as his voter, right? The problem is not just with the politicians, but with also us, that we will also vote for someone or something based on, say, a bias or whatever. Correct. And that is where we are also going wrong. And when you talk about, traffic, Yeah. and some people coming from the wrong side, it's basic civic issues. Civic issues. And it all boils down to eventually law and order. Correct. Which is the completely messed up Which thing is in our completely, country. I mean, आपको पता ही नहीं कोई, आपको ना कोई ट्रैफिक पुलिसमैन दिखाई देता है, आपको ना कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, और हम जैसे लोग जो रूल्स को ऑब्जर्व करते हैं उनके पास कभी कभार वो लाइसेंस वो अपने आप आ जाएगा कि भाई आपने मतलब 2 मिलीमीटर आपका टायर आ गया था, वो बाकी धड़ल्ले से लोग दे आर ब्रेकिंग ऑल द रूल्स. आई मीन देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी समवेयर. कहीं पर है ही नहीं. मतलब दिस इज द बिग प्रॉब्लम. Also, tell me something. I was reading about this few days back. Is when a major incident used to happen in India, say in the
right after 1947 or even before, up till say 2000, 2005, it was always the younger generation Yeah. that came on the streets. Correct. And there have been revolution after revolution, whether economic, social, political, Yeah. driven by, say, the younger generation. Sure. And you might have, I'm sure, have reported so many of them in the last few years. Yeah. But say after 2005 or 2010 or so, maybe it's social media, maybe it's, I don't know what the reason is also. Our generation will only talk about this online Yeah. and forget about it. So do you not think that the onus is on us now to take things, not do a revolution, but at least Yeah. hold the government and yourself accountable to see a change that should happen? Online is a very, very powerful thing, very powerful, and I'll give you some couple of very interesting examples. I agree with you. I don't believe in disruption of society. ये सारे जो so-called Gen Z revolutions कि जी वो तख्ता पलट दो and all that. I'm sorry. I don't completely agree. Even with I that. don't. Even I Yeah. don't. These are all the radicals who do that. But having said that, I'll give you a very interesting example. We all know that the Naxalite movement is finishing off now. Yes, 100%. Do you know the single biggest reason why the Naxalite movement is finishing off? I mean, I know. this is not a I know quiz, few, but I know few. Huh. But I can't say the single biggest I'll tell you reason. the single. It's security forces have played a huge role. Home Ministry की commitment थी. All that Intent, is हाँ, fine. वो सब ठीक है. The single biggest reason is the cell phone, the mobile phone. Oh, okay. Because the younger cadres, when they got the mobile phone, उन्होंने उसको switch on करा तो उनको बाहर का पता चला दुनिया में क्या हो रहा है. That's true. उनको पूरा जंगल का ही पता था सही बात कि भाई हम persecuted हैं, हमने arms take up कर लिए. जब उनको दिखाई दिया यार हमारे तो नौजवान लोग पता नहीं क्या क्या opportunities आजकल मिल रही हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में. And they said, what the hell are we doing? They started surrendering in droves. This is the single biggest reason. Wow, very interesting. Yeah. So technology plays a huge role, and I agree on campaigns like pollution and all that. They should be online movements where you pressurize the CM of Delhi, you pressurize the other cities. By and large, see, I also have a lot of empathy and sympathy for the present government. मगर southern states are still better than the northern. हमारे cities का band बच चुका है, slums बन गए हैं. Civic collapse. Total civic collapse. Either you privatize municipal corporations, or you ensure accountability. कुछ तो करिए आप. किस लिए आपको लेकर करा गया ना? That's the point. The problem eventually is with the corporations only. No MLA or MP can do what the parole is in the hands of, say, a JE or AE or XCN or councillor. But anyway, moving on to you talk about how Naxalism is coming to an end because of the mobile phone, because they realized कि बाहरी दुनिया में क्या है. आपने किम इल सुंग का इंटरव्यू करा था. आज नॉर्थ कोरिया भी एक वैसा ही स्टेट है जहाँ पे इतना बंद करके रखा है कि आपको पता ही नहीं, बाहर उनके लिए वही भगवान है. मैंने बहुत अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो जब मेरे को पता लगा कि आपने किम इल सुंग का इंटरव्यू करा है, मेरे को ये पूछना था आपसे कि वो कैसे हुआ, वो कहाँ हुआ, what kind of personality he was. I want to know everything. No, I did not go on my own. Okay. I will never admit. It was official thing. Official ऐसे था कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते थे शंकर दयाल शर्मा जी. तो ये ऑफिशियल डेलीगेशन फर्स्ट टाइम गया था इंडिया से, और टेलीविजन भी फर्स्ट टाइम ही गया था. तो आई वाज चोजन टू बी द कॉरेस्पॉन्डेंट टू गो. सो आई हैड टू लीड माय कैमरा टीम. सो आई वाज लकी टू गेट दैट कवरेज. बैक इन यार ईयर याद नहीं, बट वही लेट 80s अर्ली 90s. और कहाँ पे? उनके वो प्रेसिडेंशियल पैलेस, नॉर्थ कोरिया. हाँ, प्योंगयांग. बट आई हैव टू टेल यू वेरी कपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स वहाँ पर. सी यू एंटर प्योंगयांग एंड यू वॉकिंग अराउंड एंड देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज इन दैट सिटी. आपको आवाज़ नहीं आती. और वो उसकी वजह ये है, उनको कुछ दे हैव सम, उस टाइम था, मुझे अब का नहीं पता कि अब क्या होता है. दे डोंट, बर्ड्स नहीं वहाँ पर हो सकते. दे किल ऑल द बर्ड्स. For some odd reason, they wanted totally noiseless और बिल्कुल सन्नाटा के पक्षियों की एक आवाज होती है, अगर आप ध्यान से सुने किसी भी शहर में, बिल्कुल सन. So it's silent, total. You'll see people, but it's totally silent.
and then the discipline which they have, you know, वो अपने इनका एक वो कैलिस्थेनिक्स और ये सारी वो जो चीज़ें ये लोग करते हैं, एंड यू आर वंडरिंग कि मैं कोई एनिमेशन देख रहा हूँ या मैं रियलिटी ह्यूमन बींग्स को देख रहा हूँ. So there were very, very weird things. I remember the interview which I did, which was a normal interview. कोई ऐसा कोई earth shaking उन्होंने नहीं बोला, because he was very careful. तो इंटरव्यू हो गया, तो हमने कहा चलिए जी, हम अपनी टेप्स, उस टाइम टेप्स होती थी, फिजिकल टेप्स कैमरा में जो डालते थे. तो हमने कहा ठीक है, हम वापस जा रहे हैं. तो उनका इंटरप्रेटर आया, तो ही सेड अब चलिए. एनीवे वी वेंट टू द स्टूडियो, उनका स्टूडियो, एंड सडनली 2 of their guards came with AK-47s. एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया. शो शो शो. यार शो व्हाट, मैंने तुम्हारे सामने इंटरव्यू लिया. नो नो नो. देन दे वेंट ओवर ईच एंड एवरीथिंग. क्या बोला, क्या जा रहा है. इट्स अ पैरानॉइड सोसाइटी, टोटली पैरानॉइड सोसाइटी. उनको हर चीज़ में शक है. Might have changed a bit, I don't know about the present thing, but बहुत बुरा हाल था उस टाइम. And looking at Kim Il Sung, how was he like a proper dictator? एक feel आ जाता है ना. He was quite an overweight person, चश्मा वश्मा डालता था, I remember. और वो इंटरप्रेटर से वो तो जितना की होता है, मतलब कोई ऐसा कोई अर्थ शेकिंग उसने नहीं बोला. But they obviously wanted closer relations with India. But see, again, India has not been particularly very close to North Korea. Yes, yes. Let's be very clear. Yeah. You know, इनका जो है in terms of proliferation of nuclear weaponry and all that, इनका track record ठीक नहीं है North Korea का. And they also have some kind of association with Pakistan. Pakistan and China. पाकिस्तान एंड चाइना ऑब्वियसली. तो क्या चाइना तो उनके वो पूरा उनके माई बाप सरगना है ना, मतलब वो तो है ही उनके माई बाप है. तो इसलिए इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ विजिट, a path-breaking visit, but I don't think so much was achieved. And I have to tell you another very interesting story. तो ऑफिशियल बैंक्वेट था, शंकर दयाल शर्मा जी बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे, वो लंबा सा टेबल, सामने वो नॉर्थ कोरियन डेलीगेशन. तो सर्विस शुरू हुई, और शंकर दयाल शर्मा जी ब्राह्मण आदमी, पूरे शुद्ध शाकाहारी. तो सर्विस शुरू हुई, उन्होंने अपनी बेस्ट डिश सर्व करी शंकर इज्जत देने के लिए, और वो डिश आई, इनफैक्ट सबके सामने आई, बेबी ऑक्टोपस. ओह माय गॉड. शर्मा जी का ना, जिसे कहते हैं वो उल्टी करने को तैयार हो गए थे. अरे भाई. तो मैं भैया, हमने कहा यार हटाओ इसको. चाहे घास फूस कोई भी ले आओ, सैलेड ले आओ, ये क्या रख दिया तुमने. So funny. Yeah. Okay. अभी आई रिसेंटली वेंट टू, लाइक आई कीप गोइंग टू चाइना. तो वहाँ पे मैं उनके ना बॉर्डर एरिया स्टेट के पास गया था. तो उन्होंने कहा कि यहाँ नॉर्थ कोरिया, हमारा मार्बल का काम है, तो क्वारी है वहाँ पे. क्वारी जैसे पहाड़ी इलाकों में होती, तो हम वहाँ गए थे. तो उन्होंने कहा कि यहाँ से पास में is the North Korean border, and it was very strange because when a plane landed in that city, usually क्या होता है, जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तो आप शीशे आपके वो विंडो शेड्स ओपन करवाते हैं. ओपन होते हैं बिल्कुल. यहाँ पे नीचे हुए. और मेरी तो फट गई. कोई भाषा ना समझे चाइना के उस एरिया में, और मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ, गलत कर दिया, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था. Then when I landed, they said कि this place is very close to the North Korean border and also we have a military base over here. फोटोग्राफ नहीं करने देते. तो वो रीज़न था. तो वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि lot of North Koreans keep going in and out of China. But then there are stories कि कोई भागा है नॉर्थ कोरिया से. जब मेरे को समझ नहीं आता कि भाग के कहाँ जाएगा वो, चाइना ही जाएगा. कहाँ जाएगा वो. सही बात है. साउथ कोरिया चले जाते हैं. वो साउथ कोरिया के कभी कभार इंसिडेंट्स होते रहते हैं. They try to cross over into South Korea, into Seoul. But still, I still feel it's a totally closed society. Yeah. अभी भी बिल्कुल टाइम वॉप में है, मतलब वो. बट जब फटेगा ना, तो फटेगा जरूरी है. मतलब जब when, as you said, how Naxal is, they realize, I'm sure आने वाले टाइम में people will here also will. अकेले अगर आप इसको एक तरीके से सोचो, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान हम सोचते हैं कि ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, क्या डेमोक्रेसी हुई भाई. एक जनरल जो है उसने बैठ के सारा का सारा कंट्रोल कर लिया है. बिल्कुल. और उस जनरल में या नॉर्थ कोरियन लीडर में क्या फर्क है. ये बात वो भी वही है. इसी तरह का मेंटालिटी तो वही है ना. ये तो आपकी बात सही है. So yeah, it's all these dictatorships and all that. And what I really feel bad about is when the West lectures us on human rights and democracy and all that. भैया तुम अपने neighborhoods में देखो क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है.
ये इन कंट्रीज में, और जहाँ पर बोलना होता है वहाँ बोलेंगे बोलते नहीं, नहीं है। और जहाँ नहीं बोलना होता हाँ वहाँ वो तो बोलते हिपोक्रेसी है, प्योर हिपोक्रेसी। टोटल ये सब चल रहा है। एंड आपने यू इंटरव्यूड गोर्बाचोव आल्सो, Mikhail Gorbachev. This must have been after 1991 only, after the Soviet fall of the Soviet, right? उनका ना एक बहुत USSR. जबरदस्त, उन्होंने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च करे थे, कॉल पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। Yeah, perestroika. Yeah. Launched by Gorbachev. Gorbachev, yeah. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मुझे अब थोड़ा बहुत याद है, तो ये भी बहुत पहले था। सो वे दे पुट अस इन दिस प्लेस कॉल्ड द रुसिया होटल। रुसिया होटल was at that time the largest hotel in the world, which is just about 100 meters from the Kremlin. Kremlin, okay. तो आप बाहर निकल के आप सीधा चल के आप सीधा, which is what we did with our team, you could walk to the Kremlin. तो आई रिमेंबर वो आई थिंक सेंट कैथरीन्स हॉल और समथिंग, वहाँ पर आई थिंक कहीं पे कॉर्नर में Gorbachev made an appearance. It was a short interview, not very long, but थोड़ा interview हो गया. But yeah, he had warm words to say about India and everything. But then, please remember, Gorbachev was not Putin. He was a darling of the West. Yeah. And he was carrying out a certain, I would say, a Western agenda. So he was trying to change the entire society. I'm not too sure. आजकल की अगर आप जनरेशन से बात करो, उनसे बात करो, they don't like him at all, actually. आज के रशियंस? No, they don't. The entire Putin regime and all that, nobody has good words to say about Gorbachev. उनको ये लगता है कि not only Gorbachev, but Yeltsin उससे पहले थे, Gorbachev, all these people, they sold out to the West. Because they हाँ, एसेट्स कई रशिया के उन्होंने मतलब, और ऑल दीज माफियाज एंड ये सब पनपने शुरू हो गए थे इन लोगों के टाइम में। स्टेट की कई जो चीज़ें थी, दे वर लिटरली ऑन सेल। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ, but you can't deny the fact that the man was a history maker. Yeah. I mean, and you might agree with him or not, but yeah, he did create something. I mean, we are taught in political science. I had political science in my school, and हमें पढ़ाया गया मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में। तो yeah. जब रशियन प्रेसिडेंट को इंडिया में पढ़ा रहे थे, कुछ तो करके ही गया होगा। And I still remember I couldn't help staring him because he had this wine-colored mark on his forehead. Yeah. उनका एक वो बड़ा, you know, it's a very prominent thing. So you kind of looking at him. So yeah, interesting. Very interesting. I mean, crazy moments you've had in your yeah. I mean, certainly. I mean, interesting. See, even and what was your age at that time? Like how? यार क्या होंगे 30s में जो भी है, whatever. I'm 64 now. Okay. So whatever, and then I came back again to television for a second stint. बीच में I also became an entrepreneur. I wanted to be an entrepreneur. अच्छा. Oh yeah. I didn't. मैंने पूरी सिर्फ न्यूज़ को मैंने छोड़ दिया था फिर. Then I was an entrepreneur. Then Mr. Ghosh again asked me to come back. He was setting up another channel called Lok Sabha Television. Yeah. Where I came back as a lead anchor. Oh, that also he has set up. Yeah, Lok Sabha TV. He set it up. So I came back as a lead anchor. तो वो भी मतलब वो भी स्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। पार्लियामेंट उसकी रिपोर्टिंग सिर्फ पार्लियामेंट के टाइम पे ही होती थी। बेसिकली पार्लियामेंट चैनल था। हाँ, पार्लियामेंट चैनल। तो वो भी थोड़ी देर करा मतलब। Okay. So yeah. You also wrote a show or a series. You created the Agent Rana. Agent Rana. When was that? This was after your second stint? नहीं ये सब छोड़ दिया था. I was doing my other activities and then I got this offer from the Times of India. They said we are looking to do a kind of a graphic novel on a daily basis in the newspaper. Oh. And that's how, and a spy thriller. So that's how the Agent Rana came into being. And I think it was a big, huge success in the sense कि मतलब इनके काफ़ी, पर उसकी कंट्रोवर्सी बहुत हो गई थी. मैं उसी पे ही आ रहा था. मैं आज पढ़ रहा था अभी आपके आने से पहले कि वो जो समीरा का आई थिंक कैरेक्टर था, मैं कुछ ऐसा था ना कि शहला रशीद के ऊपर ऐसा कुछ कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी. She jumped into the fray where she says you have depicted it on me. मैंने कहा भैया मेरे को तो पता भी नहीं आप कौन है. I kind of knew but I didn't depict it on her. But a lot of people see
उसमें क्या था कि a lot of people got upset. एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया के कई रीडर्स भी थोड़े अपसेट हो गए थे कि यार ये ग्राफिक नॉवल और इसमें सेक्स दिखा रहे हैं, वायलेंस दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, दिस इज सच अ फडी डडी ओल्ड न्यूज़पेपर, दिस इज व्हाट ही वांटेड टू शेक इट, यू नो, द ओनर्स, दैट वाज देयर ऑब्जेक्टिव. तो वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा मीट हो गया बिकॉज इट वाज, आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट मेल ऑन ट्विटर एंड एवरीथिंग कि ये क्या दिखा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट. मैंने कहा भैया स्पाई थ्रिलर ऐसे ही होते हैं. So it ran for 2 seasons. The first season was Pakistan centric against Pakistan. The other was a China centric serial. वो भी बहुत जबरदस्त था. अच्छा. Then we were halfway through our 3rd season when COVID happened. Okay. And then they stopped it. फिर या तो फंडिंग नहीं रही उनके पास या प्रायोरिटीज चेंज हो गई. आई थिंक द बोर्ड आल्सो चेंज. देयर वाज अ वो ब्रदर्स में I know, हो गया था Vineet ना. Jain and his हाँ, brother. टेलीविजन Yeah, और yeah, yeah. प्रिंट में कुछ. तो एनीवे सो इट स्टॉप्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट जितने भी रहा डेली फॉर 2.5 years इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. उस टाइम जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो आप मतलब how what was My people, the marketing head and other people who supported me, they said, Jaggi, ठीक है, द बिग बॉस लाइक्स इट, तू करता रहे, तू लिखता रहे, डजंट मैटर, ये तो चलता रहेगा. इनफैक्ट दे आर प्रॉब्ली लविंग इट सीक्रेटली, हु नोज. sometimes even the people who are hating on it also love it, but they don't say it openly. Yeah. Not that I deliberately set out to provoke people, but see, देखिए आप स्पाई थ्रिलर लिख रहे हैं तो उसमें आप ये तो ना कि आप बैठ के आप भजन गाएंगे. नहीं definitely the intention of doing something artistic is get a reaction out of the other person. obviously. अगर कोई reaction नहीं है तो फिर आपने कुछ create नहीं करा फिर. My favorite line is art always has to provoke. Yeah, अगर आर्ट प्रोवोक नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? it has to be provocative. अब ये तुम्हारी जो धुरंधर है इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही है? बिकॉज इट इज सच अ प्रोवोकेटिव Yes. फिल्म. कितने सारे इमोशंस आपको एक ही मूवी से आप एक ही देख के movie आ मिल दो, रहे हैं। कितने इमोशंस लेके आ रहे हो आप वापस अपने साथ. बिल्कुल बिल्कुल. Like my father who does not watch crime or killings or blood, like he can't see it. Can't see it. He saw Dhurandhar and he said, I think मैं एक बार और देखने एक जाऊंगा. बार और मैंने कहा यार कई लोग देख रहे हैं 2-2 दफा, उनको और मीनिंग्स दिखाई दे रहे हैं उसके exactly अंदर. the movie gets It gets to you. yeah, I it agree gets with to that. you slowly. It gets to you. I agree with you. नहीं, इसकी उरी भी बहुत बढ़िया मूवी थी. हाँ उरी सर आर्टिकल 370 370 प्रोडक्शन also. थी बट Yeah. जो उसमें लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुली मेड मूवी. Yeah. In fact, if what's his name? Dhar. आदित्य धर. Aditya Dhar is watching. Aditya Dhar, you read my book and make a movie on this. Yeah. Very right. So your book, it's called Lies, Spies and Nuclear Eyes. It's a novel. Talk to me a little bit about the book. What is it about? It is what is called, जो धुरंधर का है, it's reality fictional style, same thing. Reality ये है कि 1974 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा था the then Prime Minister इंदिरा गांधी जी. But nobody knows till now why she did it. What are the exact reasons? I mean, ये कह देना national security, nationalism and all that is fine. But what are the real reasons? Now, what I've done is I've inspired by her, और कई characters उस era के हैं इस किताब के अंदर, but they are not exactly their story. I have fictionalized them also. That's the way you develop characters, plotting and everything. बट ये बात ज़रूर है, उस टाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ हमारी, द CIA ऑफ अमेरिका एंड ISI पाकिस्तान, को सारा खेल चल रहा था जो अभी भी चल रहा है. बाय द वे, व्हिच इज द लुक एट द सिमिलैरिटी. जो 70s में चल रहा था वो अभी भी चल रहा है. ओके, सो इन दैट सेंस देयर वर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स शी हैड टू मीट. फैमिली डायनामिक्स भी थे, वो भी इस किताब के अंदर है कि फैमिली के अंदर भी धुरंधर चल रहा था घर के अंदर. अब मैं बोलूंगा नहीं, अब किताब पढ़नी पड़ेगी आपको उसके लिए. नहीं थोड़ा तो आप बता सकते हो सर. यार हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप इंदिरा गांधी की आप लाइफ देख लो ना. उनकी 2 बहुएं हैं, एक बहू के साथ बनती थी, एक के साथ नहीं बनती थी. सीधी सी बात है. मेनका के साथ नहीं बनती थी. डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ. मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको. तो एनीवे, तो सी some of the family dynamics fictionalized, quasi fiction कहते हैं इसको. ओके समझ गया. quasi fictional स्टाइल में मैंने किताब में उसको मैं लेके आया हूँ. तो both she was under tremendous pressure both in the family front, और बेटा जो था he was out of control. संजय गांधी.
I mean, everybody knows Yeah, what yeah. he was doing at that time. Yeah. CIA के situation was very very tough because the US president wanted to do कि ये जाए किसी तरह से इसको हटाओ. इंदिरा गांधी जो है. Because they didn't like him. एंड पाकिस्तान तो खैर एक्टिव हमेशा, वो तो 71 के बाद देवर वेटिंग की कुछ हो, बट पाकिस्तान वाज गेटिंग एम्ब्रॉयल्ड अराउंड दैट टाइम इन द अफगानिस्तान सिचुएशन बिकॉज द अमेरिकन्स वांटेड कि तुम मुजाहिदीन को ट्रेन करो. बिल्कुल. So that situation was, so all this is in the book, all this. And therefore she went in for the nuclear explosion, but the biggest reason was she was becoming very unpopular at home because of the Jayaprakash Narayan movement. और उस टाइम क्या हो गया था, ये जो है ना, ये मतलब ऑपोजिशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था. इनफैक्ट दे डिड अ मैसिव रैली इन रामलीला मैदान वेयर शी एक्चुअली फेल्ट कि ये तो मेरी गद्दी गई. इट वॉज दैट बैड. सो देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई शी वेंट इन फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट. एंड देन द होल बुक इज अबाउट द इंटेलिजेंस एजेंसीज गेटिंग दैट, बिकॉज एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम. अगर अमेरिकन्स को इसकी भनक मिल जाती दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, they would have actually hit you with missiles, your nuclear reactors. Yeah. They wouldn't have spared you. And how we deceived the Americans, that is also Very part of the interesting. book. That is very interesting. It is a massive deception game. But again, I have used some real facts and then I built it up overall. So that's why I think it's a very engaging read. All these dynamics are there in the book. I think Americans always have had a problem with strong leaders sitting up. भाई देखो, अभी भी इंटरफेरेंस है, बहुत ज़बरदस्त इंटरफेरेंस है, मगर अब फर्क ये हो गया है कि वी नॉट ओनली वी आर न्यूक्लियर पावर बट इकोनॉमिकली वी आर डूइंग प्रीटी वेल. Yeah. और वो अब लोगों को वो चुभ रहा भाता है, नहीं है, चुभ रहा है. वो उनको चुभता है, भाता नहीं है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज. सो आई फाइंड it's very uncanny for me, but I think the situation today has similarities what was happening in the 70s. और 70s का दशक तो खैर वो मेरा दशक था. I was a young man then. I had seen everything with my own eyes, क्या हो रहा था. So मेरी theoretical knowledge नहीं है, मेरी actual knowledge है, where we actually saw what was going on at that time, you know. No, very interesting. सही कह रहे हो आप, अभी भी वही चल रहा है. Because जो एक अमेरिका बैलेंस करने की कोशिश करती है पावर को या दो नेबरिंग कंट्रीज को. मैंने एक्चुअली ये भी पॉइंट लिखा हुआ था आपसे डिस्कस करने के लिए, बिकॉज यू टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो. Yeah. Is how like India surrounded by all its neighbors, all the neighbors Yeah. is either going down one by one, or there is disturbance, or they are if the कहीं disturbance नहीं है, they are trying to create disturbance. Correct. वो सब इंडिया को चेक में रखने के लिए ही हो रहा है. Absolutely. I mean, see, India is today, you can keep saying it's a dead economy, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा जो भी है, but it is not. It's a very, very important player. Yeah. So whether it's Americans, whether it's the EU, whether it is whatever, everybody wants a piece of the action in India. अगर कंट्रोलिंग स्टेक्स हो जाए कि आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड कंट्रोलिंग स्टेक्स पहले हो चुके हैं in previous administrations. So the point which I am making is that nobody can ignore India. That's the short point. हमारे अपने इंटरनल इश्यूज बहुत सारे हैं, that's fine. But the strategic importance, and look at the maritime coastline of India. आप अगर नॉर्थ को भी एक मिनट के लिए, वो चाइना वाला एंगल भी एक मिनट के लिए छोड़ दो, वो तो ऑब्वियस है कि you know lot of powers want that we should be as a counterweight to China. But I am saying the other part, which please look at the maritime coastline. You are in one of the most strategically important regions in the world. Bay of Bengal, Arabian Sea, पूरा Indian Ocean. आपके थोड़ा आगे चले जाओ, मलाक्का स्ट्रेट्स आ जाते हैं, where all the shipping crosses through there. So India has a very strong navy, one of the most, it's among the top 10 navies in the world. आपकी जैसे कहते हैं ब्लू वाटर नेवी है. So there are a lot of things which are going for us, but they also want, that is why people want somehow कि इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक्स मिल जाए हमें किसी तरीके से. And that is why whether it's through these intelligence agencies or through political interference or through the economic, अब जो ट्रेड sanctions लगे हैं आपके ऊपर, the reason for that is very simple कि India will make it come to our, you know, do our bidding. But वो नहीं हो रहा ना, मतलब. So India is defying it. They want us to bend down. They want us to. Exactly, or rather accept their agenda. Yeah, that's why they want. they. I mean, whatever they could show on the face of it, that howdy Modi and how
Donald Trump loves Modi. He would definitely want a much weaker leader to be in power so that he can get his Yes, intent man. done. Maybe Asim Munir #2, that Yeah. kind of character. वो आसिम मुनीर जितना भी यहाँ पर बैठ के वो फन्ने खान बनता रहे, अमेरिका में जाके वो तो जी हजूरी शुरू कर देता है ना वहाँ पर, बाद बाइबलाइजा होशियार ट्रम्प साहब. तो आई मीन और क्या ये लोग करेंगे यार. So, I mean, the same so-called field marshal or field marshal or whatever you want to call him, वो जाके वहाँ पर चाकरी करता है. अब ये इंडिया, देखो एक चीज़ है, whether it is BJP, whether it is Congress, nobody can, especially on the ostensibly open में ऐसे चाकरी हम नहीं कर सकते. वो इंडियन जिसे कहते हैं वो किसी लीडर के लिए करना, he won't survive, he or she won't survive in office for a single day. वो हो ही नहीं सकता. ये लोग अमेरिकन समझ नहीं पाते इस चीज़ को. उनको लगता है कि हमने तो इतनी अच्छी डील दी है, तुम्हें क्यों नहीं हम ले रहे आप, मतलब. That's why we probably get along better with the likes of Putin and all these people, because इन लोगों को ना थोड़ी इनमें मेच्योरिटी इनको समझ आती है कि इंडिया की इनकी थिंकिंग क्या है. अमेरिकन की वही थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि उनको समझ नहीं आती एग्जैक्टली कि इंडिया के साथ डील कैसे करा जाए. इंडिया के साथ नहीं सर, आई तो फील कि वो इतने रफ है, उनको लगता है कि हम इतने बड़े हैं कि दादागिरी से ही सारा काम निकल आएगा. लाइक व्हेन यू लुक एट हाउ आप उनके लोगों से भी बात करोगे ना, मतलब उनके लोगों तक में ये एरोगेंस झलकता है कि वी आर द ग्रेट अमेरिकन्स. it's in their attitude, it's in their working, it's in, I mean, the corporates, it's everywhere, that thinking that, you know, we are the greatest country in the world. See, and we having are the said richest. that, अकेले एक और चीज़ है, देखो अमेरिका के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं. हाँ, To be वो very डिनाई नहीं कर honest, सकते. जो उनका सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, इन द सेंस ऑफ अभी भी फ्रीडम लविंग लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है. देयर आर सम वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विच इंस्पायर यू अबाउट अमेरिका. बट द प्रॉब्लम जो बनती जा रही है इज दे ऑल्सो वुड लाइक इन अ स्ट्रेटेजिक सेंस, दे वुड लाइक पीपल टू बी ऑन देयर साइड. इनकी जो फेमस प्रॉब्लम यही है, आइदर यू आर ऑन आवर साइड और यू आर ऑन द अदर साइड. उनको बीच का ना जो एरिया है वो दिखाई नहीं देता. कि देर आर पीपल और कंट्रीज और एंटिटीज लाइक इंडिया विच वांट टू बी ऑक्यूपाई द मिडिल स्पेस. कि भाई हम ठीक है, हम आपके दोस्त हैं, मगर आप ये कहो कि हम आपके चमचे बन गए हैं, हम वो नहीं हैं. They can't understand that. हिस्टोरिकली भी हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं. Historically, जब पहले भी पावर्स बनी हुई थी, बटी हुई थी, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी उसको नॉन अलाइनमेंट कह लो, हम जो भी हमेशा कह लो. नॉन अलाइंड ही रहे हैं. See, but non-alignment was, to my mind, a very, neither here, wishy-washy kind of concept. जो अब का है, now it is like a strategic alignment with anyone जहाँ से हमें pragmatically फ़ायदा हो सकता है. Our policy has also changed. अब ये नॉन अलाइनमेंट नहीं है कि मतलब हम इक्वल कर रहे हैं, रशिया की तरफ भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहे हैं. हम कह रहे हैं देखो हम मिडल ईस्ट में भी हमारे दोस्त हैं. आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ, वहाँ पर भी वी आर बिल्डिंग ब्रिजेस. वी हैव ट्राइड एंड वी हैव नाउ बिल्ड ब्रिजेस विद नेपाल, श्रीलंका. ये सब हो रहा है, मतलब रीअलाइनमेंट हो रहा है. सो वी आर ओपन टू ऑल दैट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. बट अब वही है, अमेरिका इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ चर्न. ये भी चीज़ है. Do you think what is happening in Bangladesh also, that America, yes, जो उन्होंने यूनस उसको बिठाया भी है, वो उन्हीं का ही पूरा करतूत है? Do you think so? बांग्लादेश इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इवन फॉर अस. सी देखो, उसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप 71 में देखो, द रियल रीज़न वाई द वॉर वी हैड टू गो इन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से आ रहे थे. कुछ करना पड़, यू हैड टू डू समथिंग. टुमारो सपोजिंग बांग्लादेश गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अब ठीक है, आपकी आर्मी है, BSF है, सब कुछ है, मगर अगर आपके लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल स्टार्ट पोरिंग इन, क्या करोगे आप? दैट्स द अदर प्रॉब्लम. आप तो ना कि आप गोली चलाना शुरू कर दोगे. एक तो वो प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान का एंगल जो है बहुत डेंजरस बनता जा रहा है. मैंने इनफैक्ट अभी पॉडकास्ट करा अभी 2-3 दिन पहले. मैंने कहा टुमारो व्हाट इज टू स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम एक्सपोर्टिंग 2 or 3 nuclear weapons to Bangladesh? I mean, they can do that. See, I've written, India being cornered, can Pakistan give Bangladesh nuclear weapons? I've literally written this. Yeah. So it's a possibility. You never know.
they are already talking of, oh, we are getting Eurofighters. Eurofighters are very advanced jets. अरे भाई तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हें दे रहा है ना, मतलब somebody wants to create trouble in the neighborhood. Eurofighters are very advanced fighters, you know, they are on the टक्कर of Rafales. So अगर ये सब चीज़ें शुरू हो गई, मुझे लगता है इंडिया एट सम पॉइंट, देखो, we don't want to get sucked into a Ukraine-like conflict. We have to be very careful. Yes. अब यूक्रेन में जो हाल हो गया है रशिया का, जो भी कहो, रशिया को भी बहुत नुकसान हो रहा है. अब वो चीज़ हम नहीं चाहते. Which means actually the only way is what I call the Trump way. अब वो जो वेनेजुएला में कर रहा है, उसने अपने फोर्सेस तो नहीं भेजा ना वेनेजुएला में. अब ऊपर से आप एयर से आपने अटैक कर दिया, शिप्स को कर दिया, आपने थ्रेटन कर दिया, ब्लॉकेडिंग कर दी. आप भी करो यार, किसने रोका है बांग्लादेश? डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट चीज़ों. बिल्कुल, यू नेवी का ब्लॉकेट कराओ, ये कराओ, होस्ट ठिकाने लगाओ उनके, मतलब इन डोंट कमिट योर फोर्सेस, स्पेशली योर लैंड फोर्सेस, फीट ऑन द ग्राउंड मत करिए आप, बिकॉज दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया. वो रशिया यूक्रेन वाली सिचुएशन, वो बिल्कुल. और अब छोटे से छोटे देश भी आजकल आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज, अब इंडिया की जो ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, इट वाज प्योरली एन एरियल कॉम्बैट वॉर. फोर्सेस तो थी नहीं. ट्रूप्स होना कि गए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो कंटेनमेंट उसमें आसान होती है. द मोमेंट लैंड फोर्सेस मूव इन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन अ कॉन्फ्लिक्ट. दैट्स ट्रू. अभी आपने एक बात बोली दैट अमेरिका इज स्टिल, दे लव फ्रीडम, दैट्स अ फ्री सोसाइटी. you've also been in journalism, and मैं काफ़ी बार पॉन्डर करता हूँ इस चीज़ पे कि we are a democracy, but are we truly free in this country? And freedom of expression, I feel, has to be absolute, because ये ना बड़ी blurred lines हो जाती है otherwise, कि आप कोई, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई टेक ऑन इट, कि कोई अगर ऑनलाइन भगवान राम के ऊपर मजाक उड़ा रहा है, करेक्ट, और मजाक उड़ा दिया, किसी ने जोक मार दिया, सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं लोग ये करते हैं. मैंने अगर किसी और रिलीजन पे, जो कि टॉलरेंट उतना नहीं है जितना एक हिंदू होगा, तो क्या क्या हो जाता है ये हम देखते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो कल को अगर कोई मेरे को आके बोले कि आपके भागवत गीता में ये लिखा हुआ है और मैं इससे अग्री नहीं करता, ये बकवास है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, आपको ये ऐसा लगता है, ठीक है, कुछ नहीं होता. आपको लगता है कि राम जी ने गलत करा, या रामायण में या कृष्ण जी ने भगवत गीता में कुछ गलत बोला, तो ठीक है. लेकिन अगर नूपुर शर्मा का ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, कि अगर उन्होंने कोई किताब की ही बात को खुले में बोल दिया, वो उसका राइट है, वो उसका फ्रीडम है. शी कैन से एनीथिंग विच इज रिटन इन द बुक. वहां पे आपके सारे लॉज आ जाते हैं, ब्लास्फेमी के, इसके उसके. ये मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ऑन अ लार्जर स्केल ये किसी भी चीज पर अप्लाई हो सकता है. तो जैसे फ्रांस जैसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज प्योर, मतलब कोई ये नहीं है कि आप ये बोल सकते, ये नहीं बोल सकते. क्या आपको लगता है, बिकॉज आप जर्नलिज्म में रहे हो, आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए होता है, आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? सी माई टेक ऑन दिस थिंग इज दैट, एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया एक्चुअली इज़ अ ह्यूजली डाइवर्स कंट्री, और यहाँ पर फॉल्ट लाइन्स एक नहीं, हज़ारों फॉल्ट लाइन्स हैं. और अगर फॉल्ट लाइन्स को थोड़ा सा आप ऊपर से प्रेशर डालोगे तो और बड़ी 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 होनी शुरू हो जाएंगी, एंड इट कैन लीड टू अ बिग प्रॉब्लम. But what I also believe at the same time, I'm not saying that you curtail freedom of speech, but I'm saying, अगर आपने, जैसे आपने नुपुर शर्मा का केस बोला, अब उस केस में her contention obviously was, and the people who support her, that she was actually, in some respects, she was talking about facts or whatever, but उसको शायद इंटरप्रिटेशन गलत, बिल्कुल, जो भी हुआ, बिल्कुल, जो भी हुआ, बिल्कुल. बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट कंट्रोवर्सी. मैं ये कह रहा हूँ, तो आप उस चीज को हर चीज के लिए फिर अप्लाई करिए ना. फिर अरफा खानूम शेरवानी कैसे बोल रही है? Yes. How is she going on and on about whether in the guise of BJP, RSS or Hindus or whatever,
शी स्पीक्स अ लॉट ऑफ रबिश आई हैव सीन. हेट मॉन्गरिंग. अगर आपने एक चीज को आपने शट डाउन कराया है तो फिर इसको भी शट डाउन कराइए फिर. बिल्कुल, वो रूल सेम अप्लाई होना. ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ. फिर देखिए, अगर वी आर अ वेरी सेंसिटिव सोसाइटी, अगर मान के हम चलते हैं, अगर हम हैंडल नहीं कर सकते ये सब चीजें, तो फिर सबके लिए बराबर का होना चाहिए ना भाई. बिल्कुल. तो ये आइदर थ्रू अ जुडिशियल प्रोसेस और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, बट फिर इसको आप करवाइए इसको. ये मैं भी मानता हूँ कि हाँ. ये या तो इधर रहो या इधर रहो. ये रूल्स हैव टू बी अप्लाइड द You सेम फॉर can't एवरीवन. then make a film like PK where you are denigrating Exactly. Hindu gods and goddesses. Yeah. आप खुलेआम कर रहे हैं. और by the way, I don't know if a lot of people know about this. जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, they partnered with ARY Digital Services of Pakistan. Do you know That this? RE Digital. हाँ, RE or whatever it's called, ARY. Seriously? Yes, they were their partners. I didn't know that. Digital Services. Yeah, I'm telling you. Check it out. Oh, very interesting. I will check. तो this out. ये मतलब, अब ये सब अब आप बेवकूफ़ियाँ करोगे तो फिर तो आपको, अगर कोई आपको अगर कहेगा आप गद्दार हो या जो भी हो, तो फिर आपको सुनना पड़ेगा भाई. ऐसे आप नहीं कर सकते. पाकिस्तान इज एन एनिमी स्टेट. Yeah. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. एंड आप अपनी अमन की आशा लेके, आप जैसे कहते हैं हम चिराग ढूंढने, अपने घर में ढूंढ लो, मगर बाहर आप पब्लिक में फिर ये सब मत. आप यू कांट डू दिस. दैट्स द पॉइंट. I don't understand the whole idea of loving. मतलब जैसी कोई वॉर हुई, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ ना, एक अलग ही यहाँ नैरेटिव फैल रहा होता है. वहाँ नहीं हो रहा कुछ ऐसा कि अमन की आशा, वहाँ कुछ नहीं हो रहा. वहाँ तो कह रहे हैं जाओ जी मार दो, ऐ कर दो, वो कर दो. यहाँ पे हम ज्यादा ही प्यार के आई पीछे. डोंट अंडरस्टैंड. मेरे को लोगों की मेंटालिटी यहाँ नहीं समझ आती. ठीक है, हमारे कंट्री में जयचंद थे, सब कुछ था, मगर मुझे नहीं समझ आती कि क्या मेंटालिटी है कि दुश्मन देश, और आप वहां पर जाओगे. आप जाओ तो सही, वहां पर जाके रहो, हाँ. जाके देखो. मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन माइट एग्री और नॉट, लेट्स से विद सेक्सुअल राइट्स फॉर इंस्टेंस गेस. अब आप अपना गेस का वहां पर, तुम्हें पता है कराची में जो होते हैं होमोसेक्सुअल गेस, उनका क्या हाल करते हैं, क्या हाल कर रहे हैं ये लोग. यही आप इस्लामिक उसमें जब ओवर रीच के अंदर एक चीज को आपको अलाउ नहीं करने देते वहां पर, और यहाँ पर बैठ के आप सब क्रिटिसाइज करी जा रहे हो. मतलब आई मीन गो एंड सी द रियलिटी देयर ना, कि वहाँ क्या हो रहा है. पीछे ना सर किसी कोई पैलेस्टाइन के लिए चांट करा था, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री. तो किसी ने जाके उनसे पूछ लिया कि विच रिवर आर यू टॉकिंग Which river you talking उसको about? पता ही नहीं. उसको पता है. See, वो most of them will tell you जो campuses पे थे कि वो my friend was doing it, so that's why I joined them. चलो भाई, very good. और वहां पे बात करते हैं सर कि you know so many, you see so many people from the LGBT community in India and outside of the country in America protesting for Palestine, not realizing that they वहाँ सर तन से जुदा है आपका. नहीं करके दिखाओ. तुम LGBTQ वहां पर गाजा में जाके तुम प्रैक्टिस करके दिखाओ. वो तुम्हें ना मतलब खंबे से लटका देंगे वो ऊपर से. सबसे पहले what world do these guys live in यार? It's a bubble. हाँ. So in that sense, the important point actually, Akhil, is we actually have a lot of freedom in our country. The very fact that Miss Khanum जो है हर रोज अपना जहर उगलती हैं, मगर किसी ने बैन तो नहीं करा ना उन्हें. No. उनका चैनल चल रहा है. बिल्कुल. वायर जो भी करण थापा, बाय द वे, वाज माय बॉस फॉर अ शॉर्ट टाइम. Okay. तो वो जो भी चाहे बोलते रहते हैं, बोल रहे हैं ना, किसी ने बंद तो नहीं करा उन्हें. और हम सुनते भी है. सुनते हैं. मैं ठीक है, वी कैन, आई क्रिटिसाइज करण, आई क्रिटिसाइज अरफा, बट आई एम नॉट फॉर अ मोमेंट सेइंग कि उसको बंद कर दो यार. Exactly. आई विल नेवर सपोर्ट समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल. You know, that is true freedom which we have in our country. And then people, they accuse this administration कि यहाँ पर कोई freedom नहीं, कुछ नहीं. अरे भाई, what exactly is your definition of freedom? Do you want the Pakistani kind of freedom? Yeah. Also, sir, freedom is more available, say, जो जैसा आपने कहा, we are divided into or whatever. It is much more on the right side of things than the left side of things. They want to, मतलब उनको तो हर चीज ही बैन कर दो. They will be completely non-tolerant to anything which does not follow their narrative. भाई वही प्रॉब्लम यही होती जा रही है ना. What exactly is the definition of liberalism? Yeah. लिबरलिज्म की क्या डेफिनेशन है? लिबरल का मतलब क्या है? In the guise of clamping down on what you think is right wing or hate, the common things are it's anti-democratic, it's hateful,
इट इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, दिस इज द Common. वो एक चीज बना लेते हैं तो इसको बैन करो आप. माई ओनली पॉइंट इज, अगर आपने सब कुछ बैन नहीं करना है तो फिर आप भी बैन हुई है ना, आपको भी चुप करा देते हैं. फिर लेट्स हैव अ बैन, लेट्स गो बैक टू द दूरदर्शन एरा. Yeah. ठीक है ना, फिर वही वाला, फिर हम उसका वही हम नैरेटिव चलाते हैं. जब आपने सबको खुली छूट दी हुई है, फिर यू कांट जस्ट ब्लैन सेलेक्टिवली. Then you have to allow people to speak their minds, yes, within certain reasonable limits, as the courts say. Absolutely correct. मगर ये selectivism जो है, this is the big problem हमारे national discourse में. Where do you consume most of your news from? मेरे frankly बहुत, see I am an ex-news person, तो मैं अभी भी थोड़ी बहुत चैनल्स देख लेता हूँ. मैं फॉरेन नेटवर्क्स भी देखता हूँ, पॉडकास्ट मैं काफ़ी सुनता हूँ. तो मेरे काफ़ी सोर्सेज हैं, एंड देन आई कैन अराइव एट माई ओन कंक्लूजन्स आफ्टर दैट. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर सोर्स. No, of course. या बट आई लिसन टू मल्टीपल. बट मेरे को ना एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सुनना होता है कि टू अराइव एट माई जजमेंट. So yeah, I consume a lot of that news kind of a thing in terms of alag. So And do you think the I don't know if jingoism is the right word, but however the news has become nowadays, कि आपको स्क्रीन पे आके एक्ट करना है, चिल्लाना है, 10 लोगों को बुलाना है, बहुत अलग अलग चीजें आ गई. डू यू थिंक यू वुड हैव no, been able to or wanted to do this kind of? see, and whatever my political convictions are, even if I was supporting, let's say, a political party, और उस पार्टी के कुछ लोग जो है आके अपना जो ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब as you said, चिल्ला के, I would not support it. Because for me, at the end of the day, news is a serious business. You know, I would like people to be sober. I would like them to be objective as much as possible. आपकी conviction है, वो conviction is not born out of frivolity. It is not born out of कि हाँ जी हम तो राइट विंग है या लेफ्ट विंग है क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है. बिकॉज देर आर टेंजिबल रीजंस फॉर इट. और मैं अपने जैसे मैं आपको एक रीजन बताता हूँ. अब लोग कहते हैं कि आपको मोदी जी में क्या फैसिनेशन लगती है. मैं उनको सबको एक जवाब देता हूँ. पीपल लाइक मी, आई ट्रैवल अब्रॉड क्वाइट अ बिट, मी एंड माई वाइफ. अब हम बाहर जाते हैं, हम जब पहले 20 साल 25 साल पहले जाते थे तो क्या इंडियंस की कोई कदर थी, कोई इज्जत नहीं थी. अब जाओ, नोबडी, एवरीबडी टेक्स यू वेरी वेरी सीरियसली. दिस इज द बिग चेंज व्हिच हैज कम. जब आपकी इज्जत ज़्यादा होती है, आप बाहर जाते हो, आपको लोग दे टेक यू वेरी वेरी सीरियसली, यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन. 100%. It's as simple as this. So my convictions are born out of real things. They're not born out of theory or out of frivolous nonsense. Definitely. Like we also travel abroad, if we are going to say Italy to make a deal with some quarry, the confidence now that we have sitting across them the table is that we can tell you that this is what we want, this is not what we want. Otherwise पहले तो आपकी अंदर ही की मेंटालिटी ऐसी होती थी कि आप खुद को ही उनसे थोड़ा कॉलोनियल माइंडसेट कह लो आप. हमें उससे निकाला गया है पिछले 10 सालों में दोबारा. और इट ऑल्सो हेल्प्स कि मेलोनी जी के आपके मतलब वो भी फोटोऑप्स भी आ जाती है. तो या श्योर, वो जितने फेमस यहाँ पे जॉर्ज ये क्या नाम है, मेलोनी नाम है ना, उतनी फेमस वहाँ पे मोदी जी है. वही तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा है ना. इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस. या डू यू ऑल्सो वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम जो न्यूज़ वगैरह देते हैं? या आई डू. इट्स अ न्यू मीडियम. मुझे वैसे इंस्टाग्राम की अभी भी ठीक तरह से समझ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. आई वाज डूइंग माय प्रमोशन फॉर माय बुक, तो फेसबुक पे चल रहा है, ये चल रहा है, यूट्यूब, वो व्हाटएवर जो भी है. बट माय पब्लिसिस्ट वाज टेलिंग मी, शी सेड दैट सर ये आपको ना इंस्टाग्राम पे ही काफ़ी कुछ करना पड़ेगा. सो आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट. Instagram is the place to be. The new Facebook, as Facebook तो हमारे जमाने का हो गया. हाँ, वही. Like मैंने जब से my parents in last 1 year have moved from Facebook to Instagram because Facebook पे बहुत random बकवास आने लग गई. और वो ना ads बढ़े आते हैं. Ads बढ़े आते हैं. God, ads too much. But I agree with you. Instagram is an exciting medium. I'm getting used to it. So yeah, but it's exciting. No question about it. And so your book is available? Yes, it's very much there. All platforms. If I can tell your viewers, reviews बहुत बढ़िया आ रहे हैं. मतलब in fact अभी Sunday Pioneer का somebody wrote a full critical review praising the book.
और कई लोग बुक रिव्यूज भी बहुत आए हैं, मतलब Amazon पे लोग चेक कर सकते हैं एंड ऑल दैट. सो आई वुड अर्ज ऑल योर व्यूअर्स टू गिव द बुक अ ट्राई. नो, बिकॉज आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली बिफोर फिनिशिंग द पॉडकास्ट जो आपने स्टोरी पूरी बताई कि हाउ यू मिक्स्ड ISI, रॉ, CI, टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम से मिसेस गांधीज हो रहा है यार, tenure. अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है वो. इट्स कॉल्ड द ग्रेट गेम. द ग्रेट गेम इज स्टिल ऑन. दैट्स द, आई फाइंड इट वेरी अनकैनी कि जो 70 के दशक में ये सब चीज़ें होती थी अभी भी हो रही है. मतलब सो एज दे से यू कैन ओनली अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट इफ यू अंडरस्टैंड योर पास्ट. वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मतलब जब तक आपको पास में. देखो, इंदिरा गांधी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थी. शी वॉज, आई बिलीव, अनलाइक वट एवर सम ऑफ द प्रेजेंट पीपल इन द कांग्रेस से, शी वॉज पार्ट नेशनलिस्ट. Yeah. बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हर. शी वॉज ऑल्सो अ पैसिफिस्ट, लाइक वो नेहरूवियन जो अपने पिताजी का स्ट्रेन था. She won the war, 71, but she lost the peace. Peace, yes. 95,000 prisoners of war. उससे आप लेवरेज करके कुछ भी ले सकते थे पाकिस्तान से. You could have signed a treaty कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन आप डेवलप नहीं करोगे, पीओ के वापस करोगे, तब ये आपके पास वापस जाएंगे. बिल्कुल. You could have done it. Anything. Anything you could have 95,000 got. prisoners of war, yes. या कि मतलब अब तो अभी ये देखते जाना. अभी यू मार्क माई वर्ड्स, यू थिंक ये यूक्रेन रशिया के वॉर ऐसे खत्म हो जाएगी. रशिया अल्टीमेटली यूक्रेन से लिखवाएगा कि भैया ऐसा है कि आप उतनी फोर्सेस रखोगे जितना विच इज कंफर्टेबल टू अस, उसके ऊपर आप नहीं रख सकोगे. यू वेट एंड सी. इट्स गोइंग टू गो और डाउन. नेटो से पैक्ट नहीं हो सकता. नेटो से सवाल ही नहीं उठता. एक सीधी सी बात है, एक पुराना कानून है. देयर इज अ फेमस लाइन, द विक्टर टेक्स द स्पॉइल्स. So whoever wins the war, that person will dictate the peace. We won the war in 1971, but we lost the peace. And if let's see how this Russia-Ukraine thing unfolds. But उसके अंदर भी वही चीज़ है कि the victor takes the winnings, the winner takes it all. तो let's see कहाँ होता है. We unfortunately had a chance, we lost it. चलो शायद आगे फिर आए. ऑपरेशन सिंदूर पार्ट टू वेट उसी की लोग कर रहे हैं. करेक्ट. चलो सर, थैंक यू सो मच. इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू ओवर डिफरेंट टॉपिक्स, एंड everyone who is watching, this is a very interesting book, as we discussed on the podcast as well. And please, I'll share the links from where you can buy this. And thank you so much for the great conversation. Thank you so much, Akhil. Really enjoyed myself talking to you, and best of luck to your podcast and to all your endeavors in the future. Thank you so much, sir. Thank you.